Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from the book of Numbers, chapter 3, verse 13. हमारे ध्यान के लिए आज का पद्य गिनती की पुस्तक 3.13 से लिया गया है। Mine shall they be. वे मेरे ही होंगे। When we see the extended explanation to this verse, Numbers 3:13, जब हम इस पद्य गिनती 3.13 की विस्तृत व्याख्या देखते हैं, this verse explains God's claim on the firstborn of Israel, both human and animal. तो यह पद्य इजराइल के ज्येष्ठ पुत्रों, मानव और पशु दोनों पर परमेश्वर के दावे की व्याख्या करता है। The verse points back to the time of Exodus, when God struck down the firstborn in Egypt as the final plague. यह पद्य निर्गमन के समय की ओर इशारा करता है, जब परमेश्वर ने अंतिम विपत्ति के रूप में मिस्र में ज्येष्ठ पुत्रों को मारा था। So that was the final plague, the 10th one. तो यह आखिरी विपत्ति थी, 10वीं विपत्ति। At that time, God spared the firstborn of Israel who had the blood of the lamb on their doorpost. उस समय परमेश्वर ने इजराइल के उन ज्येष्ठ पुत्रों को बचा लिया जिनके द्वार की चौखट पर मेमने का खून लगा था। And because of this, God declared that every firstborn in Israel belonged to me and is set apart as holy. और इस वजह से परमेश्वर ने घोषणा की कि इजराइल में हर ज्येष्ठ पुत्र मेरा है और पवित्र के रूप में अलग रखा गया है। God's statement, "They are to be mine," shows His special claim on the firstborn as a reminder of His deliverance of Israel from slavery. परमेश्वर का कथन वे मेरे होने चाहिए इजराइल को गुलामी से छुड़ाने की याद दिलाने के रूप में ज्येष्ठ पुत्र पर उनके विशेष दावे को दर्शाता है। However, rather than taking every firstborn son to serve in the tabernacle, हालांकि हर ज्येष्ठ पुत्र को निवास स्थान में सेवा करने के लिए लेने के बजाय God chose the Levites to serve in their place. परमेश्वर ने उनके स्थान पर सेवा करने के लिए लेवियों को चुना। The act of substitution highlighted God's grace प्रतिस्थापन के कार्य ने परमेश्वर की कृपा और उनकी सेवा में and also the unique role of the Levites in His service. लेवियों की अद्वितीय भूमिका को भी उजागर किया। So this verse emphasizes that God's claim on the firstborn is a direct result of saving act during the Passover. इसलिए यह पद्य इस बात पर जोर देती है कि ज्येष्ठ पुत्र पर परमेश्वर का दावा फसह के दौरान किए गए उद्धार कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम है। God has directly saved them, परमेश्वर ने उन्हें सीधे बचाया है and it serves as a continual reminder of His power, protection and ownership over His people. और यह उसके लोगों पर उसकी शक्ति, सुरक्षा और स्वामित्व की निरंतर याद दिलाता है। So when we see from the historical context, इसलिए जब हम ऐतिहासिक संदर्भ से देखते हैं, Numbers 3:13 goes back to the night of the first Passover. तो गिनती 3.13 पहले फसह की रात पर वापस जाती है। The first Passover, पहला फसह, when God delivered Israel from the bondage in Egypt. जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। It was the first, the final plague यह आखिरी विपत्ति थी which struck down the firstborn of Egypt. जिसने मिस्र के पहली संतान को मारा। And it was the decisive act that led to Pharaoh releasing the Israelites from slavery. और यह निर्णायक कार्य था जिसके कारण फिरौन ने इजरायलियों को गुलामी से मुक्त किया। During this event, इस घटना के दौरान God spared the firstborn of Israel because of the blood of the lamb that marked their home. परमेश्वर ने इजराइल के पहली संतान को मेमने के खून के कारण बचाया जो उनके घर को चिन्हित करता था। That blood of the lamb that became a powerful symbol of God's salvation. मेमने का वह लहू परमेश्वर के उद्धार का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। After this miraculous deliverance, इस चमत्कारी उद्धार के बाद God declared that all firstborns in Israel were to be set apart for Him. परमेश्वर ने घोषणा की कि इजराइल में सभी पहली संतान उसके लिए अलग रखे जाएंगे। This act was meant to be a continual reminder of God's mighty hand in saving His people. ये कार्य अपने लोगों को बचाने में परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ की निरंतर याद दिलाने के लिए था। However, instead of taking every firstborn son from each family, हालांकि प्रत्येक परिवार से प्रत्येक ज्येष्ठ पुत्र को लेने के बजाय God chose the Levites to serve on behalf of all the firstborn. परमेश्वर ने सभी ज्येष्ठ पुत्रों की ओर से सेवा करने के लिए लेवियों को चुना। So they were dedicated themselves to the service of the tabernacle. इसलिए वे स्वयं को निवास स्थान की सेवा के लिए समर्पित कर देते थे। So this substitution allowed Israelite families to keep their firstborn sons while still honoring God's claim. इसलिए इस प्रतिस्थापन ने इजरायली परिवारों को अपने ज्येष्ठ पुत्रों को रखने की अनुमति दी
जबकि परमेश्वर के दावे का सम्मान भी किया। And the firstborns can be with the family now. और अब ज्येष्ठ पुत्र परिवार के साथ रह सकते हैं। One side, God's claim is their firstborn are mine. एक तरफ परमेश्वर का दावा है कि उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे हैं, So in their place, Levites are given. इसलिए उनकी जगह लेवियों को दिया गया है। God's desire is fulfilled. परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई The firstborn people are at their own homes for the Israelites. और इजरायलियों के लिए ज्येष्ठ लोग अपने घरों में हैं। So the Levites became a living symbol of God's grace and His provision. इसलिए लेवीय परमेश्वर की कृपा और उसके प्रावधान का एक जीवित प्रतीक बन गए And they are standing in the place of the firstborn and serving in the sacred duties of the tabernacle. और वे ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर खड़े हैं और घरों के पवित्र कर्तव्यों में सेवा कर रहे हैं। So this is the historical background. तो यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। But when we speak theologically, लेकिन जब हम धर्मशास्त्रीय रूप से बात करते हैं Numbers 3:13 emphasizes God's right to claim what belongs to Him. तो गिनती 3.13 परमेश्वर के उस अधिकार पर जोर देता है कि वह जो उसका है उस पर दावा करे। And the firstborn of Israel were spared by God's mercy during the Passover. और इजराइल के पहली संतान फसह के दौरान परमेश्वर की दया से बच गए And as a result, they were set apart as His. और परिणाम स्वरूप उन्हें उसके रूप में अलग कर दिया गया। So this declaration underscores God's ownership over His people and His authority to set apart individuals or groups for His purposes. इसलिए यह घोषणा परमेश्वर के अपने लोगों पर स्वामित्व और उसके उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों या समूहों को अलग करने के उसके अधिकार को रेखांकित करती है। The concept of the firstborn being set apart, ज्येष्ठ पुत्र को अलग रखने की अवधारणा समर्पण और पवित्रता के it also speaks to the broader biblical theme of dedication and holiness. व्यापक बाइबल विषय को भी दर्शाती है। So God's claim on the firstborn serves as a constant reminder of His deliverance and the special relationship between Him and His people. इसलिए ज्येष्ठ पुत्र पर परमेश्वर का दावा उसके उद्धार और उसके लोगों के बीच विशेष संबंध की निरंतर याद दिलाता है। And the substitution of the Levites for the firstborn, और ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर लेवियों का प्रतिस्थापन it highlights God's grace in providing a way for His commands to be fulfilled while making worship accessible for all. यह परमेश्वर की कृपा को उजागर करता है जो उसकी आज्ञाओं को पूरा करने का एक तरीका प्रदान करता है जबकि सभी के लिए आराधना सुलभ बनाता है। And this verse teaches that God's call on our lives is not based on our actions but on His saving work. और यह पद्य सिखाती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का बुलावा हमारे कार्यों पर आधारित नहीं है बल्कि उसके उद्धारक कार्य पर आधारित है। It reflects the idea that God's people are set apart because of His grace, यह इस विचार को दर्शाता है कि परमेश्वर के लोग उसके अनुग्रह के कारण अलग किए गए हैं, not because of anything they have done. उनके द्वारा किए गए किसी काम के कारण नहीं। Here the firstborn people have not done anything. यहाँ ज्येष्ठ लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। God protected them because they come under the blood of the Lamb. परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बचाया क्योंकि वे मेमने के लहू के नीचे आते हैं। It is the blood of the Lamb, not their works. ये मेमने का लहू है, उनके काम नहीं। They are saved means not because of their good works, it is because of the blood of the Lamb. वे अपने अच्छे कामों के कारण नहीं बल्कि मेमने के लहू के कारण बचाए गए हैं। So Numbers 3:13 is a direct statement from God. इसलिए गिनती 3 से 13 परमेश्वर की ओर से एक सीधा कथन है And using language that emphasizes His authority and His special claim on the firstborn. और ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है जो उसके अधिकार और ज्येष्ठ पुत्र पर उसके विशेष दावे पर जोर देती है। The repetition of the phrase that is there to be mine, यह वाक्यांश की जो मेरा है उसे दोहराना it underscores the personal nature of God's claim, highlighting His ownership and His direct involvement with His people. परमेश्वर के दावे की व्यक्तिगत प्रकृति को रेखांकित करता है जो उसके स्वामित्व और उसके लोगों के साथ उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी को उजागर करता है। So this verse also ties the present command back to the specific historical event, the Passover. इसलिए यह पद्य वर्तमान आदेश को विशिष्ट ऐतिहासिक घटना फसह से भी जोड़ती है। The connection between past deliverance and present command serves to remind the Israelites of God's ongoing care. पिछले उद्धार और वर्तमान आदेश के बीच का संबंध इजरायलियों को परमेश्वर की निरंतर देखभाल और यह निर्धारित करने के उसके अधिकार की याद दिलाता है And His right to determine how His people are to live in response to His saving act. कि उसके लोगों को उसके उद्धार कार्य के जवाब में कैसे जीना है। This verse's structure is straightforward and powerful. इस पद्य की संरचना सीधी और शक्तिशाली है। Yeah, it is creating a clear link between God's past action in Egypt and His ongoing claim presently on His people. यह मिस्र में परमेश्वर की पिछली कार्रवाई और अपने लोगों पर वर्तमान में
उनके चल रहे दावे के बीच एक स्पष्ट संबंध बना रही है। So in other words, दूसरे शब्दों में redemption led them to service. छुटकारे ने उन्हें सेवा की ओर अग्रसर किया। So we can see the same thing in other portions of the Bible. इसलिए हम बाइबल के अन्य भागों में भी यही बात देख सकते In हैं। Exodus 13:2, निर्गमन 13.2, Numbers 8, 17 and 18, गिनती 8, 17 और 18, in Exodus 12, 12 and 13. निर्गमन 12 और 13 में। Now what this verse means for today's Christian? अब आज के ईसाइयों के लिए इस पद्य का क्या मतलब है? How can we apply to our own life? हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? So for today's Christian, Numbers 3:13 serves as a reminder of God's claim on our lives because of his saving work. इसलिए आज के ईसाइयों के लिए गिनती 3:13 उनके उद्धार कार्य के कारण हमारे जीवन पर परमेश्वर के दावे की याद दिलाता है। God saved us, परमेश्वर ने हमें बचाया, so that's why he can claim our lives. इसलिए वह हमारे जीवन का दावा कर सकता है। Just as God declared the firstborn of Israel to be his because of Passover, जिस तरह परमेश्वर ने फसह के कारण इसराइल के ज्येष्ठ पुत्र को अपना घोषित किया, we are set apart for God because what Christ has done for us. उसी तरह हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं क्योंकि मसीह ने हमारे लिए जो किया है। So this verse challenges to recognize that our lives are not our own. इसलिए यह पद्य यह पहचानने की चुनौती देती है कि हमारा जीवन हमारा अपना नहीं है। We belong to God हम परमेश्वर के हैं because he has redeemed us. क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है। It also reminds us of the importance of remembering God's past acts of deliverance in our life. यह हमें अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार के पिछले कार्यों को याद रखने के महत्व की भी याद दिलाता है। Just as the Israelites were to remember the Passover and sparing of the firstborn, जिस तरह इसराइलियों को फसह और ज्येष्ठ पुत्रों को बचाने को याद रखना था, we are also called to remember Christ's sacrifice on the cross, which set us apart as God's people. उसी तरह हमें भी क्रूस पर मसीह के बलिदान को याद रखने के लिए कहा जाता है, जिसने हमें परमेश्वर के लोगों के रूप में अलग किया। This verse teaches us to live in gratitude and dedication, यह पद्य हमें कृतज्ञता और समर्पण में जीना सिखाता है, knowing that our salvation comes from God alone. यह जानते हुए कि हमारा उद्धार केवल परमेश्वर से ही आता है। So how this verse relates to the loving God? तो यह पद्य प्रेम करने वाले परमेश्वर से कैसे संबंधित है? Numbers 3:13 reflects God's love is in his ongoing relationship with his people. गिनती 3:13 दर्शाता है कि परमेश्वर का प्रेम उसके लोगों के साथ उसके निरंतर संबंध में है। And by sparing them their firstborn during the Passover, और फसह के दौरान उनके पहली संतान को बचाकर God demonstrated his protection and care for Israel. परमेश्वर ने इसराइल के लिए अपनी सुरक्षा और देखभाल का प्रदर्शन किया। His claim on the firstborn is not about control, पहली संतान पर उसका दावा नियंत्रण के बारे में नहीं है, but about a loving reminder of his saving power and his desire for his people to be set apart for him. बल्कि उसकी बचाने वाली शक्ति और उसके लोगों के लिए उसकी इच्छा के बारे में, एक प्रेमपूर्ण अनुस्मारक के बारे में है कि वे उसके लिए अलग रहें। God's provision of the Levites as substitute shows his understanding and grace. परमेश्वर द्वारा लेवियों को प्रतिस्थापन के रूप में प्रदान करना उसकी समझ और अनुग्रह को दर्शाता है। It is a substitutionary arrangement. यह एक प्रतिस्थापन व्यवस्था है, So this arrangement reflects God's loving and compassionate nature. इसलिए यह व्यवस्था परमेश्वर के प्रेमपूर्ण और दयालु स्वभाव को दर्शाती है। It provides a way for his commands to be fulfilled in a way that blessed his people. यह उनके आदेशों को इस तरह पूरा करने का तरीका प्रदान करता है जिससे उनके लोगों को आशीर्वाद मिले। Now finally, अब अंत में how this verse connects to Jesus Christ. यह पद्य यीशु मसीह से कैसे जुड़ती है? Numbers 3:13 points directly to Jesus Christ. गिनती 3:13 सीधे यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। Why? क्यों? Lord Jesus Christ was called as the firstborn. परमेश्वर यीशु मसीह को ज्येष्ठ पुत्र कहा गया था। Firstborn was killed. ज्येष्ठ पुत्र को मार दिया गया। So the ultimate firstborn who was set apart for God's purpose is Jesus Christ. इसलिए परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अलग किया गया अंतिम ज्येष्ठ पुत्र यीशु मसीह है। Colossians 1:15 describes कुलुस्सियों 1:15 में वर्णन किया गया है he is the firstborn of all creation. कि वह सारी सृष्टि में ज्येष्ठ है। So he is highlighting his preeminence and his unique role in God's plan. इसलिए वह परमेश्वर की योजना में अपनी श्रेष्ठता और अपनी अद्वितीय भूमिका को उजागर कर रहा है। Just as the firstborn of Israel were set apart because of God's saving act, जिस तरह परमेश्वर के उद्धारक कार्य के कारण इसराइल के ज्येष्ठ पुत्र को अलग रखा गया था, Jesus was also set apart to be the savior of the world. उसी तरह यीशु को भी संसार का उद्धारकर्ता होने के लिए अलग रखा गया था। Jesus' sacrifice on the cross is the ultimate fulfillment of the idea of substitution seen in the Levite. क्रॉस पर यीशु का बलिदान लेवियों में देखे गए प्रतिस्थापन के विचार की अंतिम पूर्ति है। He took our place. उसने हमारी जगह ले ली। He offering himself as the perfect sacrifice to secure our redemption. उसने हमारे उद्धार को सुरक्षित करने के लिए
खुद को एक आदर्श बलिदान के रूप में पेश किया। Hebrews 12:23 calls Jesus. इब्रानियों 12:23 में यीशु को बुलाया गया है। He is the mediator of the new covenant, वह नई वाचा का मध्यस्थ है। showing that through him we are set apart as God's people. यह दर्शाता है कि उसके द्वारा हम परमेश्वर के लोगों के रूप में अलग किए गए हैं। We are fully redeemed and reconciled to God. हम पूरी तरह से छुड़ाए गए हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुके हैं। So this connection teaches us that Jesus is the ultimate expression of God's claim on his people. तो यह संबंध हमें सिखाता है कि यीशु अपने लोगों पर परमेश्वर के दावे की अंतिम अभिव्यक्ति है And standing in our place and making us holy through his blood. और हमारे स्थान पर खड़ा होकर हमें अपने लहू के माध्यम से पवित्र बनाता है। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, we are his own. हम उसके अपने हैं। Let us live as the children of God with holiness and dignity. आइए हम परमेश्वर की संतान के रूप में पवित्रता और गरिमा के साथ जीवन जिएं। May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्यारे स्वर्गीय पिता, our gracious God, हमारे दयालु परमेश्वर, Lord, परमेश्वर, we thank thee. What has happened literally in the Old Testament, we can see the image in the New Testament. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पुराने नियम में जो कुछ हुआ है वह सचमुच में हुआ है। हम नए नियम में इसकी छवि देख सकते हैं। In reality, we are seeing. वास्तव में हम देख रहे हैं। Lord, thou hast killed the firstborn in Egypt. परमेश्वर, आपने मिस्र में पहली संतान को मार डाला है। The Israelites' firstborn are no way better. इसराइलियों के जेठे बच्चे भी इससे बेहतर नहीं हैं। They are also in Egypt, वे भी मिस्र में हैं, but they came under the blood. लेकिन वे खून के नीचे आ गए। So you have shed your blood for us in the New Testament. इसलिए आपने नए नियम में हमारे लिए अपना खून बहाया है। Though all of us are under death punishment, हालांकि हम सभी मौत की सजा के अधीन हैं, Lord Jesus Christ was killed for us as the Lamb of God. परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के मेमने के रूप में मारे गए। When we come under the protection of that blood, we will be protected and saved. जब हम उस खून की सुरक्षा में आते हैं तो हम सुरक्षित और बचाए जाएंगे। So the blood saved us from death. इसलिए खून ने हमें मौत से बचाया। Therefore we are your own. इसलिए हम आपके अपने हैं। Not only you have protected, you have purchased us with your blood. आपने न केवल हमारी रक्षा की है बल्कि अपने खून से हमें खरीदा भी है। Help us to be thy own and help us to live in holiness and also with dignity. हमें अपना बनने में मदद करें और हमें पवित्रता और गरिमा के साथ जीने में मदद करें। O Lord, lead us and guide us. हे परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शन करें। Thank you for saving us. हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' precious name we pray. यीशु के अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।